So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope that you all are fine and healthy at your place. I am Abhinav and you are watching my channel Abhinav Dubey. So in today's video, I will be telling you all some paper presentation tips which will help you all and make your answer sheet stand out. Before starting, if you are new to this channel, subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update. I am saying this because it is for your benefit because I will be coming up with other subject videos on class 12 board examination and also on CUET and make your journey from your hometown to Delhi University. I have already uploaded the English strategy video. If you haven't checked it out, the link is in the description. Do check it out. The topic of today's video is going to be how to score 100 on 100 in English. So without wasting much time, let's get straight into the video. So firstly, let's discuss the paper pattern in brief. Reading section is of 22 marks. First passage is factual passage with 12 marks. Second passage is database passage with 10 marks. You will see a variety of questions here. It will be MCQ, very short answer type, answer in one word, true, false, etc. Section B, writing section, 18 marks. Notice 4 mark, invitation and replies 4 mark, letter 5 mark, article or report 5 mark. Here in letter you can have letter to the editor, letter for job application, etc. Section C, literature, 40 marks. So you can see reading plus writing is of 40 marks and literature itself is of 40 marks. So let's start with the first tip, that is 15 minutes reading time. How to utilize this 15 minutes reading time? So you have to just read both the passages given in the reading comprehension so that you are on an edge when compared to other students. क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा बहुत सारे बच्चे लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चंस देखना चालू कर देंगे, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, राइटिंग सेक्शन में कौन सा हम लेटर अटेम्प्ट करें या आर्टिकल में अटेम्प्ट करें या रिपोर्ट अटेम्प्ट करें. सो यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज यू आर स्मार्ट एंड यू आर फॉलोइंग अ टॉपर्स स्ट्रेटजी. सो 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम रहेगा उसमें ही आप रीडिंग सेक्शन के दोनों पैसेजेस को कंप्लीट कर. टिप नंबर 2, use same ink. What I mean by using same ink is that या तो आप पूरा पेपर ब्लू पेन से लिखो या तो आप पूरा पेपर ब्लैक पेन से लिखो. इट इज अप टू यू. प्रेफरेबली ब्लू पेन से लिखना चाहिए पूरा पेपर. वेस्टेज ऑफ टाइम होता है अगर आप दो पेन से लिख रहे हो तो. ऑल्सो डू नॉट राइट विद अ जेल पेन, यूज अ ब्लू डॉट पेन. ओके. टिप नंबर 3, CBSE sample question paper must. Yes, it is extremely important to solve the CBSE sample question paper with a time limit. The advantage of doing this is 3 hours का आप टाइमर लगा के बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका टाइम किस में जा रहा है. क्या पैसेज रीड करने में आपका ज्यादा टाइम जा रहा है या आपको राइटिंग सेक्शन में सोचने में ज्यादा टाइम जा रहा है या आपके लिटरेचर सेक्शन में वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो. ये सब चीज इट विल हेल्प यू आउट ओनली थ्रू CBSE का सैंपल क्वेश्चन पेपर. टिप नंबर 4, नीट एंड क्लीन. योर आंसर शीट शुड बी नीट एंड क्लीन. अगर आपकी कहीं कटिंग भी होती है तो आप सिंपल एक लाइन से काटिए, स्क्रैचेस मत करिए. जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन पेपर होगा उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे. ये फैक्ट है बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. टिप नंबर 5, बोथ साइड मार्जिन. आपको आंसर शीट जो मिलेगी उसकी दोनों साइड पतली पतली सी मार्जिन ड्रॉ करनी है विद अ पेंसिल. आपको आंसर शीट फोल्ड करके नहीं करना है, सिंपल एक स्केल लेना और पेंसिल से आपको दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ करनी है. द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस इज आपकी आंसर शीट में एक प्रेजेंटेशन आ जाती है कि आपने अच्छे से मार्जिन में लिखा और वो ऐसा लगता है कि आपने एक बॉक्स में लिखा है. सो इट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. टिप नंबर 6, बोल्ड लेटर सेक्शन. आपको सारे सेक्शन एक नए पेज से स्टार्ट करना है और पेज के टॉप पे लिखना है आपको बोल्ड लेटर से सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन. उसके बाद आपको पूरा रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना है. याद रहे एक सेक्शन आप स्टार्ट करें तो उस सेक्शन को पूरा खत्म करें. आप उस बीच को रीअरेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने राइटिंग सेक्शन स्टार्ट किया है तो आप फर्स्ट में लिखिए सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन और उसमें अगर आपको नोटिस नहीं बन रहा है, लेटर आता है तो आप सबसे पहले लेटर अटेम्प्ट करिए, फिर आर्टिकल कर लीजिए, फिर अगर आपको नोटिस आ रहा है तो आप नोटिस कर लीजिए, फिर आप इन्विटेशन एंड रिप्लाईज कर लीजिए. नंबर 7, नो कंजूसी. आपको पेपर में कंजूसी नहीं दिखानी है. बोर्ड्स में आप एक्स्ट्रा आंसर शीट ले सकते हैं तो आप सारे आंसर्स कोशिश कीजिए नए पेज से ही अटेम्प्ट करें और अच्छे से गैप दे, अच्छे से स्पेस बना बना कर लिखें. बिकॉज इट इज इजियर फॉर चेकर टू चेक.
टिप नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट। आप अपनी एक वॉच लेकर जाइए, रिस्ट वॉच, विच विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपको अपना ट्रैक ऑफ टाइम मेंटेन करके चलना है। टाइम कहीं ऐसा ना हो कि टाइम जाता जा रहा है और आप एक आंसर आपको अच्छे से आता है तो आप लिख ही रहे। ये मेरे साथ हो चुका है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू, क्योंकि मुझे कुछ कुछ आंसर आते थे तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सम क्वेश्चंस, एंड कुछ क्वेश्चंस को मेरा अटेम्प्ट करने के लिए टाइम ही नहीं रहता था। Now here are some section wise presentation tips. Starting with reading section. Read question first. आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे तो फायदा ये रहेगा कि हमें कीवर्ड्स क्वेश्चन से उठाकर हम सीधा मैच कर सकते हैं पैसेज से। अगर वो कीवर्ड्स हमको पैसेज में दिखते हैं तो हम वहीं पे अंडरलाइन करके हमको आसानी से आंसर मिल सकता है। टिप नंबर 2, ओन वर्ड्स। आपको जो भी वन वर्ड में आ रहे हैं आंसर या 30 to 40 वर्ड्स में लिखने आ रहे हैं 1-2 मार्क्स के आंसर अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यू, तो आपको वो ओन वर्ड्स में आपको फ्रेम करना है। कॉपी पेस्ट पैसेज से करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। टिप नंबर 3, सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड पीवाईक्यूज। पैसेज की यूजुअली लोग प्रैक्टिस नहीं करते कि अरे वो तो पता नहीं है क्या आने वाला है तो छोड़ो जाके करेंगे, नहीं। आप सैंपल क्वेश्चन पेपर और कुछ पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ताकि आपको पता चले कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है और आपको कितना टाइम लगता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। मूविंग अहेड विद द राइटिंग सेक्शन, टिप नंबर 1, सॉल्व्ड एग्जांपल। आप राइटिंग सेक्शन में जितने ज्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल को गो थ्रू करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उतना आपको फॉर्मेट दिमाग में रट जाएगा। टिप नंबर 2, फॉर्मेट डेट। ये डेट क्या है? ओके, आई एम टेलिंग यू। फॉर्मेट आपको चारों जो भी आपके राइटिंग सेक्शन में आ रहा है, इनविटेशन एंड रिप्लाईज, नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल और लेटर, इन सब का आपको देखकर जाना है फॉर्मेट। एकदम अच्छे से रट जाना चाहिए फॉर्मेट। अब डेट का भी फॉर्मेट होता है, आप लेटेस्ट पैटर्न से एक बार देख लीजिएगा सारे लेटर नोटिस में कैसे आ रहा है। बट यूजुअली 2 टाइप के आपके डेट के पैटर्न होते हैं। नंबर फर्स्ट इज 22 Feb, ये होता है पहला डेट का फॉर्मेट। दूसरा ऐसा होता है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इस बार कौन सा डेट का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। वैसे ये दोनों ही करेक्ट है। टिप नंबर 3, बॉक्स। नोटिस में और आपका लेटर के बायोडाटा में जब हम भेजते हैं, ये 2 चीज में आपका बॉक्स कंपलसरी आता ही है, नोटिस में और रिज्यूमे के बायोडाटा में, तो याद रखिए ये चीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिटरेचर सेक्शन। टिप नंबर 1, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन रिपीट। आपको जितने ज्यादा हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इंग्लिश में लिटरेचर सेक्शन से। टिप नंबर 2, ऑथर्स पोइट्स नेम। अगर आप 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस चैप्टर के ऑथर या पोइट ये है, तो आप डेफिनेटली मेंशन करके आइए उस आंसर में और उस पोइट का नाम या उस ऑथर का नाम अंडरलाइन करके आइए। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर के सामने। बट अगर आप थोड़े से भी डाउट में हैं या इफ यू आर नॉट श्योर, तो आप ये लिख कर ही मत आइए, आपका आंसर गलत हो जाएगा। टिप नंबर 3, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट एक्सीड मत करिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सीड करेंगे तो ज्यादा गलती के चांसेस होंगे, मार्क्स ज्यादा कटेंगे। और कम भी नहीं लिखनी है। अगर कम दिखी वर्ड लिमिट, आप काउंट तो कर नहीं सकते, वो आप देखकर समझ जाएंगे, अगर दिखी तो भी मार्क्स कट जाएंगे। एग्जामिनर नहीं पढ़ने वाला आपका पूरा आंसर, आपका इस पे वो देखकर कितना बड़ा लिखा है उसने देखकर मार्क्स दे देगा। पैराग्राफ, आपको आंसर पैराग्राफ में देना है अनटिल एंड अनलेस आपको नहीं बोला है कि लिस्ट 2 पॉइंट्स, लिस्ट 2 इंस्टेंसेस। अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आते तो आपको लिखना है पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में, आपको आंसर करना है। आप उसमें पैराग्राफ के फॉर्म में कैसे आंसर कर सकते हैं, फर्स्टली ये, सेकेंडली ऐसे करके आप पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर कर सकते हैं। नाउ एट द एंड कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट मिनट के, यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन